My today's topic is types of functions. The first kind, one-to-one function. Let f is a function from a to b. F is said to be one-to-one function if distinct elements of A has distinct images in B. See in first figure. A has three elements, 1, 2, 3. Image of 1 is A, image of 2 is S, image of 3 is D. Here 1, 2, 3 are distinct elements and their images are also distinct. Therefore, this function is a one-to-one function. See another figure, second figure. Here elements of A are 1, 2 and 3. Image of 1 and 2 are not distinct. Image of 1 is A and image of 2 is also A. Therefore, this function is not 1, 1. See third figure. Here A has 4 elements and all the 4 elements have distinct images. 1 has image A, 2 has image M, 3 has S, 4 has N. Each element of A has distinct images in B. So this is also a function. So what we see? Let x1, x2 belongs to A. If image of x1 is equal to image of x2 implies x1 is equal to x2, then f is 1, 1 function. जब भी हमें किसी फंक्शन को 1 to 1 दिखलाना है तो हमें ये मेथड यूज करना है. हम x1, x2 एनी टू एलिमेंट्स डोमेन का लेंगे और सपोज करेंगे कि देयर इमेजेस आर सेम. यदि ऐसा सपोज करने से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि इमेजेस सेम तभी हो सकते हैं व्हेन एलिमेंट्स आर सेम, देन द फंक्शन इज 1, 1. If fx1 is equal to fx2 gives x1 is not equal to x2 or x1 is not necessarily equal to x2, then f is not 1, 1 function. Note, if x1 is not equal to x2 implies their images are also not. What do we mean? If x1 and x2 of domain are distinct and we find their images are in codomain also distinct, then f is 1, 1 function. There is a correction here. It is x1. It is x1. This is x1. If x1 is not equal to x2 implies that fx1 is equal to fx2, मतलब their images are not same, then f is 1, 1 function. One function is also known as
injective or injection. Let us see some example. Let f is a function from R to R. Here bold R means set of real numbers, and the function is defined as fx is equal to 2x. Image of x under f is 2x. Examine f is injective or not, f is 1 to 1 or not. जैसा कि हम थ्योरेटिकली देखे थे कि जब भी हमको इंजेक्टिव चेक करना है तो हम डोमेन से, यह डोमेन, इसका कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट लेकर चलेंगे और उनके इमेजेस इक्वल मान लेंगे। इमेजेस इक्वल मानने से वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम हो जाते हैं, देन फंक्शन इज इंजेक्टिव। और यदि इमेजेस सेम मानने से वो दोनों एलिमेंट सेम न हो या डाउटफुल केस हो, तब हम कहेंगे एफ इज नॉट 1 1। सो लेट अस प्रोसीड। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू domain of f. What is domain of f? Set of real numbers. Also let their images are same. ध्यान दीजिए, ये चीज हर क्वेश्चन में हमारा प्रोसीडिंग होगा। जब भी हमको इंजेक्टिव टेस्ट करना है, 1 to 1 फंक्शन चेक करना है, we will take any two arbitrary element x1 x2 of domain, and also we suppose that their images are same. This will be the proceeding. और इसके बाद हम डेफिनेशन को यूज करके देखेंगे कि ये दोनों एलिमेंट भी आपस में इक्वल हैं या नहीं। सो व्हाट दिस विल इम्प्लाई? नाउ व्हाट इज fx1? द definition is fx equal to 2x. So fx1 means 2x1, fx2 means 2x2, and 2 cancel, this implies x1 is equal to x2. So what we find, whenever images are same, it is possible only when the two elements are same. Therefore function is injective. Take another example. Let f is a function from n to z. N, bold N, is set of natural number, and z, bold Z, is set of integers, and function is defined fx is equal to x square. Examine f is injective or not. और जैसा कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जब भी इंजेक्टिविटी टेस्ट करनी है, हम डोमेन से कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट लेकर प्रोसीड करेंगे। क्या प्रोसीड करेंगे? मान लेंगे कि देयर इमेजेस आर सेम, और उसके बाद ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे उन पर, और यहाँ से फिर हम देखेंगे, चेक करेंगे कि वो दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं या नहीं। लेट अस सी। लेट x1 x2 belongs to domain of f. What is domain? Set of natural numbers. So what are x1 x2? x1 x2 are necessarily natural number. Also क्या सपोज करेंगे? Their images are same. fx1 is equal to fx2. Now apply definition. ये है definition हमारा. So what will be fx1? x1 square. What will be fx2? x2 square. Apply कीजिए. This implies x1 is equal to प्लस माइनस x2. आप लोग जानते हैं जब दोनों स्क्वायर है तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, किसी एक और प्लस माइनस ले लेंगे। यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है? यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है कि fx1 is equal to fx2 हो सकता है दो केस में, when x1 is equal to x2 and also when x1 is equal to minus x2. Now see, minus x2, x1 x2 are natural number, so minus x2 is a negative integer, but minus x2 is not in our domain. Our domain is set of natural number. तो set of natural number में x2 तो होगा, minus x2 नहीं होगा। So यहाँ पर हम सेफ हैं। x1 is equal to x2 only. माइनस x2 की पॉसिबिलिटी यहाँ
संभव नहीं है, बिकॉज -x2 इज नॉट इन डोमेन ऑफ द फंक्शन. But domain of f is set of natural numbers, therefore -x2 does not belong to n. Therefore we have only one possibility, that x1 is equal to x2. So whenever fx1 is equal to fx2, it is possible only when x1 is equal to x2. Therefore f is injective. Take one more example. Let f is a function from z to z. What is z? Set of all integers. And the function is defined fx is equal to x square. We have to check it is injective or not. Same process. हम लोग डोमेन से कोई दो एलिमेंट आर्बिट्ररी x1 x2 लेकर प्रोसीड करेंगे, उनका इमेजेस सेम मान लेंगे और डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि वो दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं या नहीं. So let x1 x2 belongs to domain of f, that is x1 and x2 are any two integers, positive integer, negative integer, both are possible. Also let their images are same. Now apply definition fx1 x1 square, fx2 x2 square. This implies x1 is equal to plus minus x2. Now see, in our domain plus x2 as well as minus x2, positive integer and negative integer both are possible. So here we get two possibility, x1 may be equal to x2 and x1 may also be equal to x2 minus x2. So x1 is not necessarily equal to x2. तो क्या इसका मतलब हुआ? x1 is not equal to x2 because x1 may be equal to minus x2 also. Therefore f is not injective. मान लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में हम इतना सारा लिखेंगे, उससे ज़्यादा बेटर है एक काउंटर एग्जाम्पल दे देना. ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हम देख रहे हैं कि डोमेन जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो सिंपली हम लिख दें कि वी हैव f2 इज 4, f ऑफ -2 इज ऑल्सो 4. फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखेंगे कि 2 and -2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f and we find f2 is 4, f of -2 is 4, therefore function is not injective. क्योंकि हमें दो एलिमेंट मिल रहा है जिनका इमेजेस सेम है. तो 1 मार्क क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट काउंटर एग्जाम्पल दे देंगे और आंसर कर देंगे कि द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव. लेट S is the set of all students of your class. मान लीजिए आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, रमेश, श्याम, मोहन, रितु, नीतू, ऐसे ऐसे 50 स्टूडेंट्स हैं. उन सभी का नाम सेट S में है. S is the set of all students of your class and N is set of natural numbers. Let f, a function, is defined from set of students to set of natural number. How? For all element belonging to S, fx, image of x under f, is equal to roll number of the student x. मतलब हम किस तरह से सेट S के एलिमेंट्स को सेट N से कनेक्ट कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट का जो रोल है उससे कनेक्ट कर रहे हैं. हमें देखना है कि इंजेक्टिव है या नहीं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, that is x1 and x2 are any two students of set S.
तो क्या x1 इक्वल टू x2 होगा? नहीं होगा। हम दो स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, मोहन को लिया और रोहन को लिया। मोहन इज x1, रोहन इज x2, सो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो चूंकि x1 और x2 डोमेन का एलिमेंट है और आपस में इक्वल नहीं है, तो इनके रोल नंबर्स भी निश्चित रूप से डिस्टिंक्ट होंगे। सेम रोल नंबर तो किसी स्टूडेंट का होता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि क्लियरली x1 इज नॉट इक्वल टू x2। नाउ fx1 बाय डेफिनेशन रोल नंबर फॉर स्टूडेंट x1। समझने के लिए मान लीजिए 7, एंड व्हाट इज fx2? इट इज रोल नंबर फॉर स्टूडेंट x2। हम मान रहे हैं कि x2 का रोल नंबर 4 है। देखिए फिगर, x1 x2 are any two students of S and their roll number x1 is connected with 7, image of x1 under f is 7, image of x2 under f 4. Whenever x1 and x2 are distinct, their roles are also distinct. यदि सेम स्टूडेंट लेंगे तो रोल सेम होगा, बट इफ स्टूडेंट्स आर डिस्टिंक्ट देन रोल नंबर्स आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट। तो क्या हम देख रहे हैं कि वेन एवर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, fx1 is not equal to fx2, so this is an injective function. Next example, let f is a function from w to w. What is w? Is the set of all whole numbers, defined as follows. Fn is image of n under f is n plus 1 if n is even, and if image of Fn is image of n under f is n minus 1 when n is odd. यदि इवन है n तो उसका इमेज उससे एक ज़्यादा है, और ऑड है तो उसका इमेज उससे एक कम है। और भी देखिए, बहुत मज़ेदार बात है, यदि n इवन है तो इमेज ऑड हो रहा है, इवन नंबर प्लस 1 ऑड। यदि n ऑड है तो इमेज इवन हो रहा है, n minus 1, any odd number minus 1 is even. Examine f is injective or not. Same proceeding है। Let x1 x2 belongs to domain of f, that is x1 and x2 are any whole numbers. Also suppose their images are same. अब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो चूंकि डेफिनेशन दो पार्ट में है, इसलिए यहाँ पर x1 x2 एक बार हम लोग इवन लेंगे, एक बार दोनों को ऑड लेंगे, और ये भी संभव है कि इन दोनों में से कोई एक ऑड हो और एक इवन हो। यानी हमको तीन केस देखना पड़ेगा कि तीनों केस में क्या आंसर आ रहा है। इन ऑल द थ्री केसेस x1 is equal to x2 or not. So take case 1. Let x1 and x2 are even whole numbers. तो कौन सा डेफिनेशन लगेगा? ऊपर वाला, ये डेफिनेशन लगेगा। सो व्हाट विल बी इमेज ऑफ x1? तो चूंकि x1 इवन है तो इमेज होगा इसका x1 plus 1, एंड व्हाट इज द इमेज ऑफ x2? चूंकि x2 भी इवन है इसलिए इसका इमेज होगा x2 plus 1. fx1 is equal to fx2 implies x1 plus 1 is equal to x2 plus 1, और 1 1 दोनों से कैंसिल, सो व्हाट वी गेट x1 is equal to x2. तो हम क्या देख रहे हैं कि if x1 and x2 both are even numbers, then fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2, यानी इस केस में इंजेक्टिव हो गया। लेकिन अभी दो केस और बाकी है। केस सेकेंड, लेट x1 and x2 आर ऑड होल नंबर्स। यदि x1 x2 ऑड होल नंबर है तो डेफिनेशन लगेगा हमारा इन द केस ऑफ ऑड n minus 1,
सो fx1 x1 माइनस वन, fx2 x2 माइनस वन, तो लिख दिया कि fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 माइनस वन इक्वल टू x2 माइनस वन, और माइनस वन दोनों से कैंसिल, सो व्हाट वी गेट x1 इक्वल टू x2। इस केस में भी देख रहे हैं कि यदि x1 x2 ऑड भी हैं तब भी fx1 इक्वल टू fx2 implies that x1 इक्वल टू x2। सो इन दिस केस ऑल्सो फंक्शन इज इंजेक्टिव। अब एक थर्ड केस रखो, सावधानी से इसको समझिए। इन बोथ केसेस वी फाइंड fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 इक्वल टू x2, so function is injective। but third case, if x1 is odd and x2 is even, किसी को भी आप ले सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को ऑड ले लीजिए और किसी एक को इवन ले लीजिए। अब खुद सोचो, ऑड x1 एक ऑड नंबर है और x2 एक इवन नंबर है, तो क्या पिछले केसेस की तरह हम ऐसा कभी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है। नेसेसरली वी गेट x1 is not equal to x2, it is confirmed, we are confirmed that x1 हमने ऑड लिया है, x2 इवन लिया है, और एक ऑड नंबर एक इवन नंबर के बराबर हो तो नहीं सकता। सो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब चूंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हम कंफर्म है, तो हम ये चेक करेंगे उनका इमेजेस डिस्टिंक्ट है या नहीं। देखिए, व्हाट विल बी इमेज ऑफ x1? x1 ऑड है तो इसका इमेज क्या होगा बाय डेफिनेशन? रिकॉल कीजिए, ऑड के केस में डेफिनेशन है दैट नंबर माइनस वन। ऑड के केस में वन माइनस हो रहा है, इवन के केस में वन प्लस हो रहा है। तो fx1 क्या होगा? fx1 x1 चूंकि ऑड है और इसमें वन माइनस किए, fx1 इज x1 माइनस वन, तो ये इवन हो जाएगा, fx1 विल बी इवन। और x2 इवन है और उसका इमेज है x2 प्लस वन, वन ऐड किया x2 प्लस वन, तो चूंकि x2 इवन है तो x2 प्लस वन क्या होगा? ऑड होगा। सो fx2 विल बिकम ऑड। इफ x1 इज ऑड, its image is even. If x2 is even, its image is odd। तो fx1 इवन नंबर हो रहा है, fx2 ऑड नंबर हो रहा है, तो क्या fx1 इक्वल टू fx2 कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है। सो व्हाट वी फाइंड, व्हेन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, then fx1 is not equal to fx2। So in this case also function is injective, hence in all cases we find function is injective। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा हम सिर्फ इसी को लेकर नहीं चलेंगे, हम इसको भी यूज करेंगे। यदि हम कंफर्म है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो हम ये चेक कर लेंगे कि दियर इमेजेस आर सेम और नॉट। यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज इंजेक्टिव। वन मोर एग्जाम्पल, लेट a and b are any two non-empty sets and a function g is defined from a cross b to b cross a। ध्यान दीजिए, अभी तक जो हम फंक्शन ले रहे थे कुछ इस तरह के ले रहे थे कि वन का इमेज टू, ए का इमेज सी, कुछ इस तरह के ले रहे थे। लेकिन अभी जो हम इस क्वेश्चन में हमारा जो फंक्शन है, इसका डोमेन ऑर्डर्ड पेयर है, इस तरह के एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट, और कोडोमेन ये भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ भी इस तरह के एलिमेंट, और एक रिलेशन इस पर डिफाइन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। हाउ? तो इमेज
of element AB under the function G is BA. उल्टा हो जा रहा है, AB का इमेज BA होगा, ये होगा। यदि यहाँ 2 3 है तो इसका इमेज यहाँ क्या होगा, 3 2। इस तरह से ये फंक्शन डिफाइंड है कि इमेज of ordered pair AB of domain is ordered pair BA in codomain. Examine it is injective or not. बहुत सिंपल है, प्रोसीडिंग हमारी वही है, लेकिन ध्यान रहे वहाँ हम चलते थे x1 x2 लेकर, लेकिन यहाँ हमारे डोमेन में एलिमेंट x1 x2 नहीं है, हमारे डोमेन के एलिमेंट्स या कोडोमेन के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसलिए यहाँ हम लेके चले कि लेट एलिमेंट a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ G, डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमने कोई भी दो एलिमेंट डोमेन का ले लिया और फिर क्या करते थे, उनके इमेजेस इक्वल मान लेते थे, मानते थे कि fx1 इक्वल टू fx2। वही बात यहाँ भी है। सो ऑल्सो लेट इमेज ऑफ element a1 b1 under G is equal to that of a2 b2। now वहाँ भी हम डेफिनेशन लगाते थे, यहाँ भी डेफिनेशन लगाइए। what is the image of a1 b1 under G? as per definition it is b1 ordered pair b1 a1, and what will be this ordered pair b2 a2। so what we get now, two ordered pairs are equal if and only if their first entries are equal and second entries are equal। so what we get a1 must be equal to a2 and b1 must be equal to b2। यदि a1 2 है तो यहाँ भी a2 है, यदि b1 5 है तो यहाँ भी 5 है। so what we get a1 is equal to a2, b1 is equal to b2। अब इसमें a1 a2 is in fact a1, a2 की जगह a1 रख दीजिए, b2 की जगह b1 रख दीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 b1 और ये भी a1 b1। so whenever their images are same, it is possible only when the two elements are same, hence G is injective। we will see more questions separately। we will do textbook question and board questions in the lesson of problems on function in another presentation।